Record. Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So, like Obed said that it's the CPU who is interacting with the input of devices to see किसको क्या मसला है. जैसे कि किसी बंदे को आप में से क्वेश्चन है या कुछ है, then फर्ज कीजिए मैं CPU हूँ and I'm going to each and every student and telling him आपको मत कुछ बोलना है, आपको मत कुछ बोलना है, आपको मत कुछ बोलना है, and so on, and I'm going it in a cycle. So definitely the CPU is tied with these things, and CPU will not be able to do its processing. Rather, the input output devices are very slow, right? And even if we have a device here, this is the input output module, and this is CPU, and then there is a memory, for example, or IO devices, they are hell of a slow. They are very slow, guys. Okay, and it is like you have that जो हमें हो जाता है कभी 1G और यहाँ आपका 5G है, ठीक है. और अगर आप कोई मूवी डाउनलोड करना चाहते हो और आप लगे हो मूवी डाउनलोड करने में अपनी इस पे 1G पे या 2G पे, ठीक है, आपको 4K वीडियो है फर्ज कीजिए जो कि 5 to 10 GB मूवी एक है, एंड वो आप डाउनलोड करें 2G पे, तो क्या होगा हाल आपका? तो वही हाल होता है CPU का इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ, ठीक है ना. सो लेकिन जो हमारा प्रोग्राम्ड IO है उसमें वो लगा रहता है, CPU लगा रहता है, बिकॉज ही हैज टू बी देयर. आपको मेमोरी ट्रांसफर करना है या IO डिवाइस से ट्रांसफर करना है, he has to be there. So we said no, we moved out to the further and we say interrupt driven. Okay, in interrupt driven क्या मसले होंगे बताएं कोई मुझे. What will be? Yes, CPU वो इंटरप्ट डिवाइस को एक्नॉलेज करेगा और पहले वही करेगा, उसके बाद अपना उसका अपना काम वहीं रह जाता है जो वो ऑलरेडी कर रहा होता है. exactly. Kamran Rafiq, can you add a point in it? सुना नहीं मैंने. जी सुना नहीं मैंने. फिर क्या सुन रहे तो लेक्चर अगर तो सुना नहीं. I am saying can you add a point in the interrupt driven? Can you add a point in the interrupt driven IO? Have you been this is your first class? Yes. अजीब बात है. Now आप खुद ही बताओ कि जो बच्चे एब्सेंट रहते हैं what good they do to themselves. Now being a teacher we have to think about it. Being a teacher I don't want to be like a teacher who just gives a lecture and that is it. But being a teacher one should feel like a father and feel like a family member and try to work it out. Anyways, I don't want to discuss these things here now. So interrupt driven IO, watch other videos. Kamran Rafiq, at least do some अपने आप पे थोड़ा सा इंसाफ करो. I have the videos on the YouTube also. Whatever we have read, at least watch them and make yourself stronger. Okay, make yourself stronger. Don't be like that. Make yourself stronger and do something in your life and for your parents and for yourself. Everybody, I'm telling for everybody, and that's also valid for myself too. So what I'm saying is that interrupt driven IO, it overcomes CPU waiting time. Why? Because it was the CPU who was trying to see who is gonna be in doing the input output. Now we get that knocking power to the IO this module. That IO module, when input out comes, the IO module can intimate CPU यहाँ से input output है. So CPU don't need to go for that busily doing all those polls to see who want to be input output. So CPU will be doing his own job, and when some input output comes in, the IO module will knock the CPU. That is called as an interrupt. Okay, interrupt means that something has happened, so do that. And we have interrupt service routines, okay, which will execute that interrupt. फर्ज कीजिए आपको आप प्रोसेसिंग कर रहे थे, ठीक है, और आप हार्ड डिस्क से कुछ पढ़ रहे थे और हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, ठीक है, या आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, डिवीजन मैथ का प्रोग्राम कर रहे थे, आपने डिवाइड बाय जीरो आ गया वहां से, आपने डिवाइड दिया और डिवाइड में बंदे ने जीरो दिया. डिवाइड बाय जीरो इज एन एरर. ओके, दैट्स व्हाट्स कॉल्ड एन एक्सेप्शन. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी कॉल दैट एज एक्सेप्शन. अब एक्सेप्शन आ गई, वो तो हो नहीं सकता बिकॉज डिवाइड बाय जीरो इज अनडिटरमिन्ड. यू कांट गेट एन आंसर फॉर दैट. दैट्स नॉट अलाउड. So this is an interrupt. We can't move further. Something has to do. We have to do something different. There could be errors. There could be software interrupts. There could be hardware interrupts. Okay. So interrupt in general means something
what the processor is processing, something different has happened. He has to do something different now, right? So now in that we have to think about कि क्या processor बैठ सकता है, फिलहाल अपना काम करेगा, interrupt जो आया वो उसको सर्व नहीं करेगा या अभी सर्व करेगा. So इस बिना पे हमारे पास दो interrupts होंगे, that's called maskable and non maskable interrupts. अब मास्केबल इंटरप्ट और नॉन मास्केबल इंटरप्ट ऐसा होता है कि भाई आपको चारा कुछ नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप पे भी काम कर रहे हो, अभी यहाँ पे चल रहा है, ठीक है ना, और इतने में यहाँ से पावर खत्म हो गया, बैटरी खत्म हो गई मेरी. It is about to shut down. System is about to shut down. अब प्रोसेसर बोलेगा कि ठहरो 2 मिनट, मैं पहले अपना काम कर लेता हूँ. He has to save all these things and he has to go for the sleep mode or something like that. So this is a non maskable interrupt. इसमें कुछ चलेगा नहीं, आपको फौरन करना पड़ेगा, आपको अपना काम छोड़ के ये काम करना पड़ेगा. So there are some interrupts which you have to do with leaving your everything and servicing that. That's called non maskable interrupt. ठीक है. और मास्केबल इंटरप्ट वो होता है कि भाई उसको हम बोल सकते हैं 2 मिनट ठहर, पहले मैं अपना काम करता हूँ, क्योंकि इंटरप्ट्स आर कॉस्टलियर. Because when interrupt comes in, what the processor is doing, okay, whatever he is doing. For example, आपका अभी आर्ट कंपटीशन का काम है और यहाँ से आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का भी काम है, ठीक है, ठीक है. अभी जब आप आर्ट का काम कर रहे हो तो आपने ड्राइंग, अपने पेन्स, अपने वो सारे टेबल पे बिछा रखे हैं. अब जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहीं ये छोड़ो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की असाइनमेंट करो, that means what you have to do, because you will not leave this job as such, because you have to come back and finish it up, this job. What do? You will save all these things somewhere, okay, and load the computer organization job and start doing that, and then you have to come back there. So when you do interrupt, you have to save all those things, whatever is on your table. So if we do it in the parlance of computer organization, that's called a program status word, PSW. So when the processor is doing some job, it has registers, lot of registers. The stack, what was in a stack, what was in the register, what was in the program counter. So program counter tells us कि अगर मेरे पास 50 lines of code है, program counter points to the next line of code. So मैंने फर्ज कीजिए मैंने 10 lines की है, अब 11वीं करनी है ना, तो प्रोग्राम काउंटर में 11वां होगा, लाइन नंबर 11 का एड्रेस, ठीक है ना. तो मैं कहाँ पहुंचा हूँ, मुझे क्या करना है इसके बाद, क्योंकि मैं जब मैं वापस आऊंगा ना, मैं फिर से नहीं ना करूंगा वो. मैंने कम बैक टू दिस प्रोग्राम, जो मैं कर रहा था, यहाँ से इंटरप्ट आ गया, तो मुझे जो 10 लाइंस के बाद 11वीं लाइन करनी है ना, अब तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा प्रोग्राम काउंटर, लेकिन वो तो मेरे को सेव करना पड़ेगा कहीं. So that means I have to save all those things there and come back to that, serve the interrupt. So that means I could have a non-maskable and maskable interrupt. Maskable interrupt को मैं बोल सकता हूँ 1 मिनट ठहर, पहले मैं finish करता हूँ. The CPU will tell him, let me finish this whole job first, so that I don't have to save all those things and come back to it. So if I can do it, so then that interrupt will be called maskable. Then I can mask it a bit. I can say, okay, wait, halt till I finish my execution. Okay, but some interrupts are non-maskable that you cannot deny. You have to say PSW. What is PSW? Program status word. You have to save that. And yes, question, Snowbird. PSW. जी? PSW फिर से बोलिए क्या था? Program status word. It means the status registers, the program counter, even the stack. वो सारा जब आप काम कर रहे थे ना, you are doing some job, some process. You have to save that ना, PSW. You have to save that. Okay? So that when you come back, you understand ना कि मैं कहाँ पे पहुंचा, मैंने क्या काम किया था, मैंने कितना काम किया था. ठीक है ना? आपने एक प्रोग्राम, आप एक CPU एक प्रोग्राम करा था, उसमें फंक्शन कॉल्स वगैरह थी, उन फंक्शन कॉल्स का एड्रेस कहाँ पे था. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक प्रोग्राम है, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन कॉल है, अब ये फंक्शन यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए पूरा ही बड़ा एक प्रोग्राम है, ये फंक्शन यहाँ पर है, अब ये फंक्शन ये करेगा, यहाँ से अपने फंक्शन 2 का कॉल किया, तो यहाँ से जंप मारेगा इधर. अभी जब ये फंक्शन कॉल का किया, ये इतना कोड करना बाकी है, ठीक है ना. जब ये फंक्शन कॉल होगी इतना, ये कोड करना भी बाकी है, इसलिए यहाँ से मारी ना जंप इधर, अभी वापस आके इधर आएगा ना, फिर ये कोड करेगा वो, ठीक है ना. इसी तरीके से जब यहाँ से इसने जंप मारी इधर, तो ये कोड करना, इतना कोड करना भी बाकी है. सो हाउ वी रिमेंबर कि हम कहाँ थे कहाँ नहीं थे, हम वो स्टैक में एड्रेस डालते हैं. हम एड्रेस हमारा स्टैक होता है. जब मैंने यहाँ से जंप मारी, यहाँ से मैंने जंप मारी, ये जो वाला एड्रेस है, से फॉर एग्जांपल 124, ये 124 में रखूंगा इसमें स्टैक में सेव. अब मैं यहाँ से जंप मारी मैंने यहाँ,
अब यहां से मैं जंप मार रहा हूं यहाँ, इसका एड्रेस फॉर एग्जाम्पल है 344, ये 344 स्टैक में जाएगा, ठीक है। सो जब ये फिनिश करेगा ये काम अपना, ये मेथड फिनिश हो जाएगा, अब देन कम्स बैक, इसको कहाँ वापस आना है, इट पॉप्स फ्रॉम द स्टैक 344, मुझे 34 पे वापस जाना है, सो इट गोज बैक टू 344। जब ये फिनिश करेगा ये वाला मेथड, अब यहां से रिटर्न फंक्शन होगी, अब इसको कहाँ जाना है वो कैसे पता चलेगा, दैट विल बी ऑन द स्टैक, इट पॉप्स फ्रॉम द स्टैक 124, इट गेट्स बैक टू द 124। अब फर्ज कीजिए मैंने इतना काम किया था कि अब मैं इस मेथड में था और स्टैक में मेरे पास वो एड्रेसेस 2 थे, मैं कहां से कहां गया था, और प्रोग्राम काउंटर में कि मैंने कौन सी इंस्ट्रक्शन अभी की है, और स्टेटस रजिस्टर्स हैं वहां पे वो फ्लैग्स वगैरह वो सारे हैं मुझे इस प्रोग्राम के जो मैं कर रहा था। अब मुझे इंटरप्ट आया, मुझे ये छोड़ के दूसरा काम करना है सीपीयू को, तो उसने कहाँ पहुंचा था, कौन सा कोड कर रहा था, स्टैक में क्या है, ये सेव करना पड़ेगा ना, कि जब मैं वापस आऊंगा इट विल बी एज इफ कि मैं वहां से गया ही नहीं। Do you understand? So that is called as a program status word. I have to save that. But now we are building a capability of input output module to interrupt when ready. So it will save the CPU from busily, asking each and every guy if you want to. So होगा क्या? CPU read command करेगा पहले, ठीक है? और IO module जो है वो peripheral डेटा लाएगा कहां से, पेरिफेरल डिवाइसेस से, तब तक सीपीयू क्या करता रहेगा, सीपीयू डज इट्स ओन वर्क। यानी कि मुझे ये सीपीयू है, इसको फॉर एग्जांपल पेरिफेरल हार्ड ड्राइव से कुछ लाना है, इट विल आस्क आईओ मॉड्यूल, दिस इज आईओ मॉड्यूल कि मेरे को फलानी डेटा, फलानी ब्लॉक, फलानी एड्रेस का डेटा चाहिए, ठीक है। बट अगर प्रोग्राम्ड आईओ होता तो सीपीयू वेट करता जब तक ये नहीं यहां से डेटा आता, ठीक है, इट वुड हैव वेटेड कि जब डेटा आएगा फिर ये देगा इसको। लेकिन यहाँ पे इसने इसको कमांड की कि भैया मेरे को फलानी ब्लॉक चाहिए हार्ड डिस्क का, जहां से जहां तक वो सारे डिटेल देगा इसको। नाउ आईओ मॉड्यूल स्टार्ट आस्किंग, एक्चुअली हार्ड डिस्क इज वेरी स्लो, टिल देन सीपीयू डज इट्स ओन वर्क, ओके, and it gets the data and everything comes here, the data, when the data is ready, everything is ready, IO interrupts, IO block जो होगा मॉड्यूल होगा वो interrupt करेगा CPU को, I am ready with the data, and it will give data to the CPU. So it saves a lot of time. Do you understand? So after that IO module interrupts CPU, then CPU requests data, IO module transfers data. Simple as it is. Does it make sense? So this is your simple interrupt processing. This is a hardware, this is a software. Device controller, other system hardware issues and interrupt. कोई भी interrupt कर सकता है, device controller हो या कोई hardware है उसने interrupt generate किया, प्रोसेसर क्या करेगा, वो फिनिश करेगा एग्जीक्यूशन करंट इंस्ट्रक्शन, लेकिन जो वो इंस्ट्रक्शन कर रहा होगा इस वक्त, उस वक्त इंटरप्ट ब्लॉक होता है। यानी कि इंटरप्ट एक साइकिल होता है ना इसका, मैंने स्लाइड दिया होगा आगे, ये जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन है इसका ये होता है कि आप इंस्ट्रक्शन लाते हो, उसको डिकोड करते हो, पहले आप फेच करते हो इंस्ट्रक्शन, उसको डिकोड करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो, इन दौरान कोई इंटरप्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये एक सिंगल प्रोसेस है, 3 स्टेप सिंगल प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद आपने वो इंस्ट्रक्शन की, उसके बाद इंटरप्ट ले सकते हो आप। तो यानी कि प्रोसेसर फिनिशेस एग्जीक्यूशन ऑफ करंट इंस्ट्रक्शन, करंट इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन होगी जो वो कर रहा है, बिकॉज ए सिंगल स्टेप प्रोसेस लाइक फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड एंड एग्जीक्यूट, इट हैज टू डू दीज स्टेप्स। उस वक्त इंटरप्ट वो बंद रखता है सीपीयू, इट डजंट इंटरप्ट लाइन ही बंद करता है वो उस वक्त। उसके बाद जब इंटरप्ट आ गया, अब प्रोसेसर करेगा एक्नॉलेज उस इंटरप्ट को, उसके बाद अपना PSW वो पुश करेगा, ओके, एंड प्रोग्राम काउंटर ऑन टू कंट्रोल स्टैक, ऑन टू जो कंट्रोल स्टैक हमारा होगा, कंट्रोल स्टैक में वो पुश करेगा वो सारी चीजें, अपनी PSW करेगा, प्रोग्राम काउंटर करेगा, यानी कि हमारे पास क्या क्या रजिस्टर्स थी, हमारे पास क्या क्या चीजें थी, हमने कहाँ पहुंचे थे, हम अपने काम कर रहे थे, वो सारा कंट्रोल स्टैक के ऊपर होगा, क्योंकि जब ये वापस आएगा इट हैज टू गेट दोज थिंग्स फ्रॉम द कंट्रोल स्टैक, उससे पता चलेगा कि मैं इस इंस्ट्रक्शन में कहां पहुंचा था एंड सो ऑन। सो देन प्रोसेसर लोड्स न्यू PC वैल्यू बेस्ड ऑन इंटरप्ट। अब इंटरप्ट जो आया उसका, अब प्रोग्राम काउंटर में व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर इज व्हेन यू आर डूइंग सम इंस्ट्रक्शन, से इसमें आपने n इंस्ट्रक्शन इस वक्त कर रहा है, CPU इस वक्त ये इंस्ट्रक्शन कर रहा है, तो CPU जो है हमारे पास, इट इज करंटली डूइंग दिस इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना।
So n+1 जो इंस्ट्रक्शन होगी यानी कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड, that is in the program counter. Program counter always keeps track of n+1. That means whatever the instruction this time is getting executed, it knows the next instruction's address, so that it fetches it in advance, so that CPU को wait नहीं करना पड़ेगा, एक इंस्ट्रक्शन उसने की, दूसरी आ गई, ठीक है ना? बात में आ रही है? So इसलिए जो प्रोग्राम काउंटर में क्या है इस वक्त n+1 ये इंस्ट्रक्शन, लेकिन यहां पे मान लीजिए इंटरप्ट आ गया, ठीक है, and we have to serve that interrupt. Say for example ये divide by 0 आ गया, अब divide by 0 उसका अपना एक अलग interrupt service routine होगा, ISR, that's called interrupt service routine, जो कि divide by 0 के वक्त क्या करना है वो कोड चलेगा, ठीक है? अब डिवाइड के 0 के वक्त क्या करना है उसको, अगर क्रैश हो गया सिस्टम उस वक्त क्या करना है, ठीक है? अगर आपकी हार्ड ड्राइव क्रैश हुई उस वक्त क्या करना है, अगर एक्सेप्शंस हो गए उस वक्त क्या करना है, हर एक के अपने इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स होंगे. We will have interrupt service routines to do that. So अभी मेरे को मान लीजिए डिवाइड बाय 0 आ गया, तो डिवाइड बाय 0 का ISR जो है, डिवाइड बाय 0 का जो ISR है इंटरप्ट सर्विस रूटीन वो ये है. That means when n+ जहां पे अभी हम n पे थे, इस इंस्ट्रक्शन में डिवाइड बाय 0 आ गया, ये जो इंस्ट्रक्शन है इट इज लाइक 4 डिवाइड बाय 0. नाउ इट कैन नॉट मूव फर्दर, क्योंकि तो क्रैश हो जाएगा ना सिस्टम. अगर नॉर्मली आप ISR नहीं चलाओगे सिस्टम विल क्रैश, बिकॉज डिवाइड बाय 0 इज नॉट पॉसिबल इन द computers, you know, and in any science, because it is undetermined, ठीक है ना? तो इस वक्त क्या करेगा अभी, और प्रोग्राम काउंटर में क्या था, प्रोग्राम काउंटर में था नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. अब जो कि इसमें एक्सेप्शन आ गया है, तो डिवाइड बाय 0 के जब हो गया तो फर्दर चलने की तो बात ही नहीं है, ठीक है ना? पहले तो ये डिवाइड बाय 0 का मसला हल करना है, तो उसको मसले को हल करने के लिए मेरे पास डिवाइड बाय 0 का सब होगा अपना इंटरप्ट सर्विस रूटीन. नाउ ये चलाना है, तो इसका मतलब है कि प्रोग्राम काउंटर में अब ये नहीं होगा n+1, अब n+1 यानी कि ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं होगी, अब ये चलेगी, ये जहां स्टार्ट है इसका जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन का स्टार्ट है वो चलेगा. सो प्रोग्राम दिस हैज टू बी लोडेड इन द प्रोग्राम काउंटर, नॉट n+1 नाउ. सो दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, प्रोसेसर लोड्स न्यू पीसी वैल्यू. वो कौन सा पीसी वैल्यू होगा, बेस्ड ऑन द इंटरप्ट, जिस किस्म का इंटरप्ट होगा उसकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन उसी हिसाब से होगी. उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन की पहली इंस्ट्रक्शन अब पीसी में जाएगी, प्रोग्राम काउंटर में जाएगी. सो व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर डूइंग, नूरुल्लाह, व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर, व्हाट प्रोग्राम काउंटर क्या होल्ड करता है? यस, बी अटेंटिव एंड लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. यस नूरुल्लाह, आवाज ये कैसे आवाज आ रही है, हु इज दिस गाय, नोट हिम. दानिश नजीर, रूफ और साहिल और नवीद कादरी और मोहम्मद हारिस, योर कैमरा इज ऑफ. सर वीडियो ऑन करने से लैग कर रहा है ऑडियो, सर नेटवर्क इशू, सर कट कट के आ रही है आवाज, दैट्स व्हाई मैंने बंद किया ना. ठीक है, ठीक. यू आर साहिल? यस सर. ओके, यू, आई नो यू, डोंट वरी. मैं नूरुल्लाह से सवाल पूछ रहा था. नूरुल्लाह, नूर साहब प्रोग्राम काउंटर क्या करा? Unmute yourself, Noor. Unmute yourself, Noorullah. Roll number 46. See, many students were absent, okay, but I am not asking them questions, something which is the previous question. It's just I अभी पढ़ा है ना ये, और तूफा गुल यहाँ से आंसर कर रही है. It saves next line of execution, that is n+1. Basically प्रोग्राम कोड है ना, कौन बता रहा है? मोहम्मद हुसैन. जी हाँ सर. बोलिए, शाबाश, वेरी गुड. प्रोग्राम कोड होता है ना, ये असल में ये सीपीयू रजिस्टर होता है सर, जो Very good. कंप्यूटर प्रोसेसर है, इसके पास में सर एड्रेस होता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का. Very good. You have added a very important point. That's the address which can we. मेमोरी है. जो अतूफा ने आंसर किया that is correct. लेकिन जो मोहम्मद हुसैन ने बोला उसको कि it doesn't store the instruction, it stores the address of next instruction. जो होनी चाहिए, मतलब जो एग्जीक्यूट होने वाली होती है मेमोरी. Very good. Nice. So program counter is a register as per Mohammed Hussain.
and it stores the address of the next instruction to be executed, है ना? जी सर। क्योंकि CPU काम कर रहा है, उसको देखना है ना कि मुझे अब दूसरी इंस्ट्रक्शन किस पे काम करना है। सो उसका एड्रेस पहले जब वो इस इंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो होगी उसका एड्रेस ऑलरेडी हमारे प्रोग्राम काउंटर में होगा। सो नाउ वी आर लोडिंग इट विद द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। व्हाई? बिकॉज नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये करनी ही नहीं है, क्योंकि मैंने इंटरप्ट आ गया ना। फर्ज कीजिए कोई इनपुट आउटपुट दूसरा इंटरप्ट आ गया, अब मुझे कुछ और काम करना है, सीपीयू को कुछ और काम को, वो जो भी वो काम होगा जो इंटरप्ट होगा, चाहे वो मेमोरी ट्रांसफर है या कुछ और है, ठीक है, उसका ISR चलाना है आप, तो वो एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। गुड, लेट मी पुट अप this chat all times open. You guys can open up mic and talk straight away, no need to chat, but if there is some issue of internet and all, then you can chat, that's not an issue, but better is to talk simply, क्योंकि chat पे अब दिमाग रखना पड़ता है ना अब ये। ओके अच्छा, जब इसने प्रोसेसर ने लोड किया न्यू प्रोग्राम काउंटर बेस्ड ऑन इंटरप्ट, ओके, अब यहां से क्या होगा, जो आपका प्रोसेसर की स्टेट थी, व्हाट यू कॉल एज PSW, ओके, वो सेव करनी पड़ेगी आपको। दैट इज दिस वाज इन हार्डवेयर, नाउ दिस इज इन सॉफ्टवेयर। उसके बाद प्रोसेस इंटरप्ट करेगी, क्या करेगी? The process will interrupt if it is some software which is having some kind of an interrupt. No, in this case it wasn't hardware which is providing with the interrupt. In this case now the software is providing the interrupt. Okay, then process that interrupt, then restore process state information, then when you come back from doing the interrupt and you have to restore the process state. That what does that mean? Is you have to restore old PSW and program counter, जो आपने यहाँ पे सेव किया था PSW and program counter, you have to get it back. ठीक है ना, हमारे पास 10 मिनट खाली है। So what is the CPU viewpoint? नूरुल्लाह ने लिखा है आंसर हमें, very good. He may have some issues with the mic. Program counter stores instructions that is to be executed. Sir, outside my home is some kind of noise. That is, I do not unmute. Okay, no problem. Network issue also, not a problem. But you have to correct your answer properly because जैसे कि मोहम्मद हुसैन ने कहा हमें, it stores the, जैसे आपने कहा program counter stores instructions, so we should say program counter stores, अगर आप stores ही बोलेंगे, address of, पहले address of, and that to instruction नहीं, next instruction, and that to not instructions, next instruction, जो next instruction एक होगी ना, उसके बाद जो करें, अभी ये कर रहा हूँ उसके बाद ये करने वाली है, इसका एड्रेस जो होगा वो स्टोर होगा प्रोग्राम काउंटर। एनीवेज सर, मुस्तफा यूसुफ की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया आपने? मुस्तफा यूसुफ, है वही तो मैं कह रहा था, आप लेट आ गए ना, मैं वही सर मैं नहीं के साथ थोड़ा बिजी लगे, थोड़ा कोई बात नहीं, मैं वही बता रहा था, एक बीनिशा याकूब है यहाँ पे, दानिश है, हाँ, फैजान, फैजान नहीं, कौन कौन मुझे एक्सेप्ट करना है? बिनिश याकूब सर, बिनिश याकूब और मुस्तफा यूसुफ। ये बिनिश याकूब, हाँ एक्सेप्ट। यस सर। मुस्तफा यूसुफ, हाँ यस सर। वही कहाँ आ गया, मुस्तफा यूसुफ एक्सेप्ट। सबीहा सर, सबीहा, सईद एहतिशाम गिलानी। आपको दिख रहा है कौन कौन यहाँ पे है? यस सर, यस सर। सबीहा, सईद एहतिशाम गिलानी, सैयद एहतिशाम गिलानी, गिलानी सबन छु दितमत अख क्लास में बस उस में याद गया छ नाम गिलानी है ना, वो गाजी अरसलान, ये रहता है ना वहां पे, करना गाजी अरसलान नहीं सर, तो नहीं, फैजान 52, दानिश सर, दानिश बीच, ये शायद दानिश था, पूरा कंफर्म नहीं है। हैज ही गिवन प्रूफ्स एंड ऑल? सर नहीं, दानिश आप इन तीनों के बारे में देखना, मुझे बताना बाद में, ठीक है ना? अभी इनको छोड़ देते हैं सर। प्रोग्राम काउंटर लिंक्ड लिस्ट टाइप सर, है ना जी? सर प्रोग्राम काउंटर लिंक्ड लिस्ट टाइप है ना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की ऑलरेडी उसको पता होती है एड्रेस, बट वी कैन नॉट से इट इज लिंक्ड लिस्ट टाइप, क्योंकि लिंक्ड लिस्ट में एग्जांपल बोल रहा हूं सर। हाँ ठीक, बिकॉज़ लिंक्ड लिस्ट में अलग चीज होगी ना, वहां पे वो लिंक होंगे ना आपस में सारे सर, लेकिन उसके पास होती है ना एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस है, बट वी कैन से इट इज लाइक ए पॉइंटर, नॉट वी कैन से लाइक इट इज अ लिंक्ड लिस्ट, हां we can say like it is like a pointer, not exactly with the like a linked list. चलिए CPU व्यू पॉइंट में क्या करेंगे, आपने रीड कमांड की, आप कुछ और कमांड, उसके बाद आप अपना काम कर रहे हो, तो एट एंड ऑफ द ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल, जब ये क्या होता है कि ये यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या ये बंदा फिर से चेक कर रहा है इंटरप्ट, ये चेक नहीं कर रहा, इसने ऑन रखा,
जब ये हो गया कि इसने अपना एक इंस्ट्रक्शन की, जैसे फेच, डिकोड वगैरह, यार उबेरवानी पता नहीं कौन है, जो फेच इंस्ट्रक्शन की, डिकोड की वगैरह की, तब तक वो इंटरप्ट बंद रखता है। उसके बाद वो इंटरप्ट खुला रखता है कि इंटरप्ट सर्विस रूटीन, आई मीन आईओ मॉड्यूल इंटरप्ट कर सकता है। यहां तक इंटरप्ट वो बंद रखता है जब तक वो इंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो अगर इंटरप्ट आया भी है तो इट विल नॉट एक्नॉलेज। सो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये आईओ के पास ये नहीं जा रहा है कि देखने की क्या मसला है, बट इंटरप्ट मॉड्यूल इंटरप्ट देगा, लेकिन ये लेगा या नहीं लेगा वो यहाँ पे लेगा। इस सूरत में जब ये फेच डिकोड इंस्ट्रक्शन कर रहा है उस वक्त नहीं करेगा। ओके, जब इंटरप्ट हो गया इसको अपना PSW सेव करना पड़ेगा। ओके, और वो उस इंटरप्ट को सेव सर्व करना पड़ेगा जो इंटरप्ट चल रहा है। तो ये देखिए आप, ये कंट्रोल स्टैक है, ठीक है ना। मान लीजिए आप ये इंस्ट्रक्शन कर रहे हो, यूजर प्रोग्राम ये है, एन पे इंटरप्ट ऑकर्स आफ्टर इंस्ट्रक्शन एट लोकेशन एन। एन पे, यहाँ एन पे आ गया हमारे पास ये। अब प्रोग्राम काउंटर में क्या था इस वक्त, n+1, ये वाली इंस्ट्रक्शन, इसका एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर में n+1 था, आपके पास जनरल रजिस्टर्स थे, उसमें बहुत सारी चीजें थी आपको, और स्टैक पॉइंटर था आपके पास। ये सारे का सारा आपको सेव करना पड़ेगा कहाँ पे, कंट्रोल स्टैक के ऊपर, इफ यू वांट टू डू द इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। और व्हाट विल बी लोडेड इन द प्रोग्राम काउंटर विल बी द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन है उसका इसने नहीं दिखाया यहाँ पे, हाँ ये है ना, दिस इज इंटरप्ट सर्विस रूटीन, ये वाला। So that means the y, which is the start of this, the y is to be loaded in the program counter. And now we have to execute this interrupt service routine. And the interrupt service routines are different for different interrupts. We have to understand that. And then it comes back. जब ये वापस आ गया, आप ये देखो यहाँ पे, हाँ देखिए प्रोग्राम काउंटर में जब इसने ये इंटरप्ट पूरी की, ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन ने पूरा किया, प्रोग्राम काउंटर में लास्ट इंस्ट्रक्शन y+l थी। जब इसने फिनिश किया, अब ये इंटरप्ट सर्विस रूटीन करना हुआ क्या, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखें। कहाँ गया है, ओके सी, देखिए मैं पूरा आपको बता रहा हूँ व्हाट इज हैपनिंग हियर। लुक, बिनिशा याकूब, what is happening here is that you are executing certain instructions. This is a user program, this one is a user program, you are executing this program. आपने ये n किया, अब ये n पे ऊपर हो, और आपके प्रोग्राम काउंटर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन n+1 है, यानी कि ये है, बिकॉज प्रोग्राम काउंटर इज पॉइंटिंग, इफ यू आर एग्जीक्यूटिंग n, प्रोग्राम काउंटर में n+1 होगा, है ना। उसके बाद आपके रजिस्टर्स में चीजें होंगी उस प्रोग्राम की, आपके स्टैक के अंदर चीजें होंगी, स्टैक पॉइंटर स्टैक में क्या था वो होंगी। अब इंटरप्ट आ गया, अब इंटरप्ट जब आ गया, अब आप आगे ये आगे वाला प्रोग्राम नहीं कर सकते हो, अब आपको ये वाला प्रोग्राम करना है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन which serves that interrupt. So that means we have to load, so we have to save all this is called PSW, all that program counter में क्या है, registers में क्या है, stack pointer में क्या है, इस वक्त जब मैं कर रहा था वो सारे का सारा सेव करना है on the control stack, ठीक है। उसके बाद हम क्या काम करेंगे, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा अब उसमें n+1 नहीं होगा, बल्कि जो ये y है वो होगा, ठीक है। और अब CPU will start doing this y+l up to y+l, इसने ये सारी इंस्ट्रक्शंस की। ये किसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, इंटरप्ट सर्विस रूटीन की। सर इंटरप्ट सर्विस रूटीन के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हुए इंटरप्ट आ सकता है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंटरप्ट्स ISR? डेफिनेटली आ सकता है, ये दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स कॉल्ड द नेस्टेड इंटरप्ट, दैट्स कॉल्ड व्हाट, maybe perhaps that is in the slide also, we'll see that because we are running out of time, but that is happen, that can happen, yes, कि ये इंटरप्ट कर सर्विस रूटीन कर रहा था, इधर से दूसरा इंटरप्ट आ गया, वो भी हो सकता है। so that means it has to leave this also, so that means that time, that's a very very good question, कि अब ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन कर रहा था उस वक्त कोई y, मान लीजिए y या y+ या ये वाली इंस्ट्रक्शन इसमें थी, और उसके रजिस्टर्स में, उसके स्टैक में इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन का माल था, है ना। अब दूसरा इंटरप्ट आ गया, अब वो सारा सेव करना है ऑन द कंट्रोल स्टेटस, ठीक है, कंट्रोल स्टैक, और लोड करना है उस जो दूसरी वो जो इंटरप्ट आया उसका इंटरप्ट सर्विस रूटीन। सो विल सेव दैट इंटरप्ट सर्विस रूटीन सेकंड फॉर एग्जांपल, अब उसकी स्टार्ट होगा, यहाँ पे मैं k लिखाऊंगा, नाउ दिस k is to be loaded in the program counter and to start executing it,
You understand? So when it comes back, when this interrupt service routine is finished, तो y plus l पर हम आ गए हैं, यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है ना. So अभी मेरे को प्रोग्राम काउंटर में y plus l है. That means I was executing this interrupt service routine and we have to mic बंद रखे, किसकी mic खुल रही है, शोर आ रहा है वहां से. So now what we do, we will get from here back from the control stack कि हम कहां पर थे, क्योंकि कंट्रोल स्टैक में वो n+1 था प्रोग्राम काउंटर, ये जो जहां पे हम पहुंचे थे ये, ठीक है ना. और उसमें वो स्टैक और रजिस्टर्स और वो सारी चीजें थी, वो वापस लानी पड़ेगी अब, एज इफ कि हम उस प्रोग्राम से कभी गए नहीं थे, ताकि कुछ लॉस ना हो. जहां जहां तक हमने वो अपना ओरिजिनल प्रोग्राम कर रहे थे, उसके बाद वाली इंस्ट्रक्शन से हम करना शुरू करेंगे. हमने उसमें जो भी काम किए थे, स्टैक में कुछ था, वो सारी चीजें वापस आ गई हैं, एज इफ कि हम कभी उससे गए नहीं थे, क्योंकि लॉस कुछ होना नहीं चाहिए. ठीक है ना. We are less than 1 minute and I need one photograph. Navid Qadri, why is your camera off?